Okay student, today we'll discuss Biot-Swartz law in magnetic field due to electric current, right? तो बायो-स्वार्ट्स लॉ क्या कहता है? बायोट एंड स्वार्ट्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास कोई वायर है ऑफ एनी शेप, राइट, एंड इफ करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर, आई करंट इस वायर से फ्लो कर रहा है, एनी शेप, आर्बिट्रेरी शेप की कोई वायर है, आई करंट इस वायर से फ्लो कर रहा है, तो ड्यू टू दिस वायर देयर मस्ट बी सम मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्स, राइट, एंड द वैल्यू ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड बाय बायोट-स्वार्ट्स लॉ. तो बायो-स्वार्ट्स लॉ ने कहा एक आर्बिट्रेरी शेप की वायर है, कोई करंट है जो इसमें से फ्लो कर रहा है, तो वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी, राइट. तो इन्होंने कहा कि बायो-स्वार्ट्स लॉ ने कहा कि अगर मैं स्मॉल एलिमेंट लेता हूँ दैट इज डी एल ऑन दिस वायर, small element dl is like this and the direction of dl is what? Similar to the direction of current above, तो dl की direction भी this side, right, and the distance between this dl to this point p, this is let's say r. तो इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से p पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज dB, राइट. तो बायो-स्वार्ट्स लॉ ने कहा कि ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड at point P is given by dB which is directly proportional to, ये dB है, is directly proportional to the current flowing through that current element, through that wire. Also this magnetic field is directly proportional to the length of this small element dl, and then let's suppose that the angle between this dl and r is theta, where theta is what? Angle between dl and r vector, right? So that dB is also directly proportional to sin theta. One more thing, कि that magnetic field, small magnetic field, is inversely proportional to the square of the distance between these two, and this is inverse square law. Means Biot-Swartz law follow inverse square law. Combining these all of quantity, तो dB is directly proportional to IDL sin theta upon r square. There is proportionality sign. When we remove this proportionality sign, we need some constant. Let's say it will be k IDL sin theta upon r square, right? If I am find out the value of k, the k is what? Value of k is mu naught upon 4 pi. Mu naught upon 4 pi in SI system of units, right? And value of k is 1 in CGS unit system. Clear? Just like Coulomb's law, right? So Biot-Swartz law is analogous to, we can write it like this, analogous to Coulomb's law in electrostats. राइट. तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई that is mu naught upon 4 pi, where mu naught is the permeability
I is the current, dl is the that current element, sin theta, theta is the angle between dl and r is the separation between this dl to the point p, right? This is Biot-Swartz law. तो I dl sin theta upon r square, this is our Biot-Swartz law, right? Now we are talking about its वेक्टर फॉर्म. अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो चलिए देखते हैं वेक्टर फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं. दिस इज़ अवर फाइनल Biot-Swartz लॉ. वेक्टर फॉर्म को देखिए, अगर मैं यहाँ लिखूं कि dl एंड थीटा साइन थीटा, तो हमारे पास एक क्रॉस प्रोडक्ट होती है a क्रॉस b. वो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है? a b साइन थीटा. तो यहाँ पे क्या है? dl साइन थीटा, राइट? अगर मैं इसको db इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, सपोज कीजिए मैं r से डिवाइड और r से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको, एंड दिस इज व्हाट? साइन थीटा, राइट? यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर क्यूब, और ये क्या हुआ? डी एल आर साइन थीटा, यानी कि ए बी साइन थीटा. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए क्रॉस बी मीन्स डी एल क्रॉस आर. दैट इज आवर वेक्टर फॉर्म. दिस इज आवर वेक्टर फॉर्म फॉर Biot-Swartz लॉ, राइट? इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा, डी एल आर साइन थीटा, आर से आर कैंसल आउट. दिस इज अवर अनदर फॉर्म. क्लियर है? तो ये था हमारे पास Biot-Swartz लॉ. अगर मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की कुछ बात करता हूँ कि Biot-Swartz लॉ से रिलेटेड सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, लेट्स से मैं बात करता हूँ सम इम्पोर्टेंट फैक्टर रिलेटेड टू दिस Biot-Swartz लॉ. तो फर्स्ट फैक्टर कहता है Biot-Swartz लॉ इज वैलिड only for symmetrical current distribution. राइट? तो Biot-Swartz लॉ कहाँ एप्लीकेबल है? सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन. सेकेंड पॉइंट, right? It is applicable for small current element like dl. जैसे हमने स्मॉल करंट एलिमेंट लिया तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट. तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड वी कैन फाइंड आउट, राइट? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये हम बता चुके हैं कि एनालोगस है, दैट इज फॉर एनालोगस टू कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट. तो मैं सोर्स की बात करता हूँ कि Biot-Swartz लॉ में मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है? सोर्स अगर मैं Biot-Swartz लॉ की बात करता हूँ, यहाँ सोर्स क्या है? यहाँ है करंट एलिमेंट. करंट एलिमेंट इज द सोर्स, मीन्स आइडियल. That current element is the source for magnetic field, right? But Coulomb's law में अगर मैं बात करूँ कि Coulomb's law में अगर मैं सोर्स की बात करूँ, Coulomb's law, तो इसमें जो सोर्स की बात की हमने, सोर्स, तो सोर्स क्या था Coulomb's law के अंदर? That is charge. Q charge is the source for the Coulomb's law. This is also important point कि यहाँ मेन सोर्स क्या था? चार्ज. बट यहाँ सोर्स क्या है? आइडियल भी करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, राइट? यहाँ किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था? चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था. दिस इज समथिंग अबाउट Biot-Swartz